اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ہارورڈ سی ایس ایس اکیڈمی کی طرف سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. سبجیکٹ ہے ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربنائزیشن مینجمنٹ, اینڈ ٹوڈے our topic is about urbanization in Pakistan. In today's class we will discuss about the urbanization in Pakistan. پاکستان میں urbanization کے حوالے سے ہم بات کریں گے urbanization and Pakistan, because basically the topic is related with the center of growth. جب گروتھ ہو جاتی ہے سینٹر میں, جب سچویشن ہو جاتی ہے, آبادی آ جاتی ہے, آبادی مائیگریشن ہو جاتی ہے, تو پاکستان میں اربنائزیشن کے پروسیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہاؤ دا پروسیس آف اربنائزیشن جو ہے اس نے ٹیک پلیس لی پاکستان میں, ہاؤ دا پیپل جو ہے وہ آئے پاکستان میں اور ایک اربن لائف جو ہے ان کی اسٹارٹ ہوئی. بیکاز پاکستان بیسکلی ٹریڈیشنل کنٹری ہے. ٹریڈیشنل کنٹری مینس a country where is people love tradition more than scientific. جہاں لوگ سائنس سے زیادہ ٹریڈیشن کی طرف ہو, یعنی رجحان ٹریڈیشن کی طرف بہت زیادہ ہے. لوگ زیادہ تر روایت پسند ہے, لوگ زیادہ تر جو ہے گاؤں کی زندگی جو ہے رورل لائف جو ہے اس کو چاہتے ہیں, یا دے ہیو مور انٹرسٹ, یا دے آر مور انٹرسٹڈ ٹو سیٹ ان دا رورل لائف, رورل سیٹنگ میں. اور بیکاز ان کے وجوہات بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر فرسٹ ریزن از دیٹ کہ اربن کی لائف جو ہے ٹوٹلی, اگر ہم اربن لائف کی بات کریں تو اربن لائف ٹوٹلی آرٹیفیشیل ان نیچر, دے آر ٹوٹلی آرٹیفیشیل ہے نیچر میں ٹوٹلی آرٹیفیشیل لائف ہے. بیکاز دیر از نو, یہاں پہ کسی قسم کی ٹریڈیشن نہیں ہے, یہاں کسی قسم کی جو روایت پسندی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. پیپل ایوری پرسن جو ہے وہ اپنی لائف میں مگن ہے, اپنی زندگی گزارنے کی اس میں مصروف ہے, اور ان کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم کو اسپیئر کرے, سم ٹائم کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے فار دا ویلفیئر آف کمیونٹی کے لیے, یا اپنے دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم پاکستانی سیٹ اپ میں بات کرتے ہیں, پاکستانی سیٹنگ میں بات کرتے ہیں اربنائزیشن کی, تو ہمیں اس بات کا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اونلی فار سرچ آف, لوگوں نے کی سرچ آف گڈ لائف, صرف لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ان کو اچھی زندگی ملے. فار دس پرپز, یا اس لائف کے لیے لوگ جو تھے انہوں نے موومنٹ شروع کی. اور یہ موومنٹ جو تھی 1970 میں یہ موومنٹ بہت زیادہ شروع ہوئی, کیونکہ یہ وہ دوا تھا یا یہ وہ ایرا ہے جب لوگ, بہت سارے لوگ جو تھے وہ موو کر گئے فرام دا ولیج سے اور دیہات سے اور شہر کی طرف آئے 1970s میں. اور اس ایرے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ آلریڈی جو تھے وہ ان کے لیے موومنٹ شروع کی ٹوارڈ دا سٹی سینٹر کی طرف, اربن سینٹر کی طرف. اربنائزیشن ہو گئی, اکنامک ڈیولپمنٹ, اکنامک بزنس اپورچونیٹی شروع ہو گئی, تو دیر فور دے آلسو موو ٹوارڈ دا اربن سینٹر کی طرف. ان کی موومنٹ شروع ہو گئی, اربن سینٹر جو ہے ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی, اربن سینٹر کے اندر ان کی ایک پروگرس, ایک امپرومنٹ جو ہے شروع ہو گئی. تو دیس بیسکلی کہ اربنائزیشن کا پروسیس, اور پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں کہ ہاؤ اربنائزیشن پروسیس جو ہے پاکستان میں ٹیک پلیس کر لیتا ہے, تو یہ ایوب خان کی جو 5 سالہ جو پلان ہیں, 5 ایئر پلان جو ایوب خان صاحب نے دی تھی, اس کے اندر انہوں نے کوشش کی تھی کہ انڈسٹریل کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کریں, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل پروگرس جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کریں, کیونکہ دس انڈسٹریل پروسیس جو ہے, انڈسٹریل پروگرس جو ہے, دیٹ از دا یہ بیک بون ہے اکانومی کی. اور ماڈرن ورلڈ میں جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی ریلیشن ہم قائم کرتے ہیں ود دا اربن سینٹر کے ساتھ, کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اور نیسیسری ہے فار دا اربنائزیشن سینٹر کے لیے. اربن سینٹر کے اندر جو ڈیولپمنٹ پروگرس ہم آبزرو کرتے ہیں, اٹ از ڈیو ٹو اور انڈسٹری کی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ انڈسٹری ہی وہ پروسیس ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو آپس میں کر لیتے ہیں, کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں, یا ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ انڈسٹریل پروسیس ہے. تو پاکستان میں انڈسٹریل سیٹ اپ کی جو بنیاد پڑی تھی ایوب خان کے دور میں, جس کو ہم 1965 سے 70 جو سیکنڈ 5 ایئر پلان ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ 5 ایئر پلان آف ایوب خان. ایوب خان کی
सेकंड थी, और वैसे ये थर्ड 5-year प्लान थी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान की थर्ड 5-year प्लान थी। अयूब खान साहब की जो थी सेकंड 5-year प्लान थी, मंसूबा था जो उसने दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। एंड दैट पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी ने प्रोग्रेस की, जिस तरीके से लोग जो थे वो मूव कर गए। उससे पहले लोग जो थे ओनली प्रोफेशनल लोग वर, सिर्फ प्रोफेशनल लोग जो थे, ओनली प्रोफेशनल लोग, पीपल जो थे वर लिमिटेड, सिर्फ वो लोग लिमिटेड थे टू सिटीज़ में सिर्फ वो लोग रहते थे। और बाकी जो लोग थे जिनके पास कोई प्रोफेशन नहीं होती थी, वो लोग शहर में नहीं आते थे। शहर में कारोबारी लोग आते थे, या इसके अलावा जो है किसाई, या इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रगर, मुख्तलिफ़ किस्म के कारीगर, मुख्तलिफ़ किस्म के वो लोग जिनके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टी होती थी। और ये टेक्निकल एक्सपर्टी आमतौर पर हम कंसिडर करते हैं कि ये एक प्रोफेशनल, ये बाय बर्थ है, ये एक ख़ानदानी पेशा है जिसको हम, और इस बेस पे वो लोग जो थे ओनली दे मूव टुवर्ड द अर्बन सेंटर, और अर्बन सेंटर में उनकी एक एक्टिविज़म होती। अर्बन सेंटर में जो थे दी पीपल्स जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस को कैरी करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे थे। तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पे सेंटर बनी हुई थी। और ख़ासकर जो थर्ड 5-year प्लान ऑफ पाकिस्तान है और सेकेंड 5-year प्लान ऑफ अयूब खान 1965 to 70, दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरह कह सकते हैं ना कि इसने एक बेस प्रोवाइड की, और इस बेस पे पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो फ्राम विलेज टू सिटी की तरफ उनकी मूवमेंट बढ़ गई। और ये जो अयूब खान के दो फर्स्ट 5-year प्लान की जो हमने बात की, दैट वाज क्योंकि लियाकत अली खान ने दिया, और लियाकत अली खान पे पैर अटैक हो गया। आफ्टर लियाकत अली खान हैदर निज़ामुद्दीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बने, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसी टाइम पे ये था कि माफियाज़ जो है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ासकर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल वजूहात दिस बेस पे उनके लिए डिफ़िकल्ट था कि उसको कैरी कर ले। तो हम उसकी उन्होंने उसको एक्सटेंशन उसको मिली, और उस 5-year जो फर्स्ट 5-year प्लान दैट वाज वो 8 सालों तक वो चलाते रहे। यहीं पहले लियाकत अली खान ने, फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने, लेकिन प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट न कर सके। बिकॉज द रीज़न वाज दैट, एक तो ये रीज़न है कि इंडिया के साथ हमारी जो प्रॉब्लम थे स्टार्ट से, जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और इसके अलावा फाइनेंशियल इकॉनमी है, और फिर उसके बाद ख़ासकर जो करेंसी के ऊपर हमारा इशू उनके साथ था। चूँकि जब पाकिस्तान और आज़ादी हुई तो यहाँ पे जो पौंड का इस्तेमाल होता था, और फिर उन्होंने इंडिया ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे जो स्टार्ट में था बैंक, पाकिस्तान का कोई स्टेट बैंक भी नहीं था, और हम ज़्यादातर डिपेंडेंसी इंडिया के वहाँ से करेंसी आती थी, उसी करेंसी पे करते, ऑल कंट्री डिफरेंट, लेकिन उसी पे थे। उन्होंने फिर उस बंद कर दी, इकनॉमिकली हमारी जो रिसोर्सेज और उसके बंद कर दी। तो इसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट जो 5-year प्लान है जो लियाकत अली खान ने, उसमें एक फ़ायदा मिला कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया गया। और इसके अलावा बाकी जो एक्टिविज़म है जो उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट प्रमोशन के ऊपर बात की, और पाए तकमील तक न पहुँची। पॉलिटिकल वजूहात भी थे, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस भी, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। फिर उसके बाद अयूब खान साहब की फर्स्ट जो 66-65 दैट वाज द, इसने एक फाउंडेशन डाली पाकिस्तान में ज़रूरी तरक्याती बैंक, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसी टाइम पे उसने कायम की थी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। और फिर उन्होंने कोशिश की कि पीपल जो है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए, ज़्यादा मोटिवेट हो जाए टुवर्ड द और इंडस्ट्री की तरफ। उनका ये था कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को बनाए इंडस्ट्रियल, एशिया का टाइगर बनाए इन द सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा वो फोकस कर ले। बट 65 में हम देखते हैं पाकिस्तान पे अटैक है, पाकिस्तान और इंडिया का हमला है। फिर 65 के बाद हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल या इंटरनेशनल फॉरेन एक प्रेशर था। देयरफॉर हम फाइनेंशियली इकोनॉमी वीक थे और हम रिस्पांस नहीं कर सकते थे। तो देयरफॉर अयूब खान ने सेकंड जो पॉलिसी ली, अयूब खान की सेकंड थी, और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान की थर्ड 5-year प्लान है जो 1965 से 70 देश ने बहुत की। इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हैं और ज़रूरी तरक्याती बैंक जिसको ZTBL कहते हैं ये, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट की उन इंडस्ट्रीज़ में जो रिलेटेड है विद द एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी। देयरफॉर मेजॉरिटी पीपल ने इन्वेस्टमेंट की, एंड देयरफॉर चूँकि ये इंडस्ट्रीज जो है ये सिटीज़ में
इजीली, देयरफॉर द पीपल की मूवमेंट शुरू हो गई टू वर्ल्ड सिटीज़, टू वर्ल्ड अर्बन सेंटर्स। लोग जो थे दे स्टार्ट मूविंग टू अर्बन सेंटर। तो अर्बन सेंटर के अंदर एक पॉपुलेशन, एक आबादी आना शुरू हो गई, एक आबादी जो है वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गई। अब इस बेस पे 70 के राउंड अबाउट, यानी 67 से 70 ये इन ईयर्स में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है और शहरों की तरफ आई। और इसी में अयूब खान साहब ने एक और अहम किया था और इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद के लिए उनका जो मास्टर प्लान जिसको हम कह सकते दिया, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस था इन पाकिस्तान में। और फिर उन्होंने CDA की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, टाउन प्लानिंग या अर्बन मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम CDA जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की। और इसके पास जो है बाकायदा बिल्डिंग कोड्स भी इंट्रोड्यूस की, और इसके अलावा बाकायदा जो है रोड कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा पॉपुलेशन मैनेजमेंट और वेस्ट जो प्रोडक्ट है उनके मैनेजमेंट के हवाले से इंडस्ट्रियल के लिए डिफरेंट जोन, एजुकेशन के लिए डिफरेंट जोन। तो ये एक एडवांस स्टेज पे पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन की एक स्टार्ट थी अंडर अयूब खान। तो देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की जो है मूवमेंट टुवर्ड द अर्बन सेंटर आई। तो पाकिस्तान में जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, तो अर्बन मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, तो दैट एरा जो है ये प्रैक्टिकली स्टार्टिंग जो है वो 70s में, 67 से टू 70s में अंडर अयूब खान सेकंड जो 5 ईयर प्लान है उसके अंडर है। एक तो स्टार्ट में पार्टीशन जिसको इंडिपेंडेंस भी हम कह सकते हैं, उसी दौरान भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जितनी भी सिटीज़ में हमारे पाकिस्तान के, चाहे कराची हो, लाहौर हो, चाहे पिंडी हो, पेशावर हो, ऑल ऑफ द सिटीज़ में जो बिजनेसमैन क्लास दे वर हिंदूज़ थे। और जब माइग्रेशन हो गई तो वो लोग चले गए फ्राम। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों के जाने से एक गैप, और इंडिया से जो मुसलमान आए वो सिटीज़ में एडजस्ट हो गए या सिटी में उनकी सेटलमेंट हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर जो अपने लोग थे, जो जिसको हम पाकिस्तानी जो यहाँ के सेटल थे, आल्दो तारीख़ में कभी कोई कौम, कभी कोई कबीला एक जगह पे उनकी हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं हिस्टोरिकली कि वो लोग हमेशा एक इलाके के, कभी एक इलाके के नहीं रहते हैं। ये माइग्रेशन जो है फ्रॉम स्टार्ट है, और टेल जो है ये माइग्रेशन का प्रोसेस अभी चूँकि थोड़ा स्पीड अप कम है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वरना इसी तरह लोग जो है वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जो है एक सफ़र में हैं, और एक जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन में है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, जहाँ पे वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए तो किसी और जगह चल पड़ते हैं। तो ये लोग जो है होल ग्लोब में एक चक्कर में हैं। तो वहाँ पे लोग आए और वो लोग जो थे सिटीज़ में एडजस्ट हो गए। तो एक वो एडजस्टमेंट थी पाकिस्तान के अंदर जो मास लेवल पे, एक हाई लेवल पे इनफ्लो आई थी फ्राम इंडिया, और उनकी सेटलमेंट हो गई अदर सिटीज़। और सेकंड जो है वो 1967 से 70s के दरमियान की फ़्लो है, ख़ासकर इस्लामाबाद में और ख़ासकर दीगर सिटीज़ में, जब इंडस्ट्रियल प्रमोशन या इंडस्ट्रियल बैंक ने लोन शुरू की, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविज़म का प्रोसेस पाकिस्तान में शुरू होता है। तो टुडे और टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक था, आज हमने जिसके ऊपर बात की, दैट वाज अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस एंड अर्बनाइजेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान में ये दोनों प्रोसेस जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन सेम है, बल्कि दुनिया में अगर हम देख लें तो जब इंडस्ट्रियल सेटअप शुरू होती हैं तो साथ में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्बनाइजेशन जो है बोथ आर इंटर रिलेटेड है या इंटर डिपेंडेबल है ईच अदर पे। अगर इंडस्ट्री बनती है तो लोग आएंगे, लोग इंडस्ट्री के करीब में मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल जॉब्स करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशन इख्तियार करेंगे। देयर फॉर दे नीड वहाँ पे उनके हाउसिंग रेजिडेंसी एरिया चाहिए। जब रेजिडेंस होगी तो उनके बच्चे भी उनके साथ, तो उन बच्चों के लिए स्कूल भी चाहिए। तो क्योंकि गाँव में तो एडजस्टमेंट डिफरेंट है, तो शहर में स्कूल चाहिए, स्कूल जाएंगे, छोटे बच्चे होंगे, उसकी माई जो है, क्योंकि इकनॉमिकली डिज़ास्टर इकनॉमिक सिचुएशन इस तरह है कि मेल फीमेल दोनों जो है दे वांट जॉब। तो फीमेल भी किसी न किसी जॉब में, स्कूल टीचिंग में, नर्सिंग में, कोई और एक्टिविटीज़ जो वुमेन रिलेटेड हो उसमें होगी, तो वो भी ऑफिस जाएगी, बच्चे को डे केयर सेंटर भी शुरू हुई। अब इसके साथ साथ क्या हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स बनना शुरू हो जाती। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एक मास फ्लो जो है शुरू होती है। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर 1967 से 70, और इसी दौरान मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, उनकी फ़्लो शुरू हो गई फ्राम द
विलेजेस है, विलेज में लोगों की ज़मीन थी, लोगों को बेचते हैं और आके शहर में ज़मीन लेते हैं, या बाज़ केसेस में इस तरह भी है कि वहाँ भी वो यूनिट बनाते हैं। पहले शहर गांव में भी बनाते थे, लेकिन गांव में चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, देयरफॉर लेटर ऑन, लेकिन वो 67-68 के स्टेज में हम देखते हैं बहुत सारे जो है जो मिल्स वगैरह है, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, वो गाँव में भी लोगों ने अपनी ज़मीनों पर की, लेकिन उसके बाद नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत सारे प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वजूहात वगैरह भी हैं। तो टुडे आवर टॉपिक वाज अबाउट the industrial and urbanization process in Pakistan. Thank you. Allah Hafiz.